کہ ہم ایک فلوٹنگ سولر کے لیے جو ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے گو اور پھر کے الیکٹرک اور سندھ گورنمنٹ کی ایس ٹی ڈی سی کا، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جس طرح آپ کو بریف کیا گیا کہ یہ 500 میگا واٹ کا دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہے، اور جس سے اور چیزیں بھی سندھ کے لیے بہتر ہوں گی. ایک تو ظاہر ہے اس وقت کرائسس ہے انرجی کا، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح مہنگی بجلی آ رہی ہے، پھر ہماری انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے، کمرشل بھی جو ایریا ہیں، اور خاص طور پر پھر جو رہائشی لوگ ہیں. تو جب یہ کہ الیکٹرک کو یہ ملے گی تو ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ بہتری بھی آئے گی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا. اور پھر جو ایک بڑی سورس ہماری پانی کی، جس طرح آپ کو بریف کیا گیا کہ اگر یہ سولر پینل وہاں پہ لگتے ہیں تو وہ جو بخارات کے ذریعے یا ویسے جو پانی ہمیشہ ایک ضائع ہوتا ہے یا ہوا میں چلا جاتا ہے، اس میں ایک بڑی کمی آئے گی. تو ہم مثال کے طور پر اگر وہ 1/4 کا جو ہمیں اس سے بینیفٹ ہوگا، ادروائز جو ہمارے دوسرے پروجیکٹ ہیں جس میں K4 بھی ہے، یا ایک ابھی ہم ہب ڈیم کا سے جو سورس آ رہی ہے اس کو بہتر کرانے کے لیے 5 بلین کا ہمارا ایک پروجیکٹ ابھی جو اس بجٹ میں انشاءاللہ ابھی آئے گا، تو اس سے زیادہ جو بچت ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. تو اس سے اس کا بہت زیادہ افادیت ہے. اور پھر یہ تو ایک اس آج والا یہ پروجیکٹ ہے، پھر اسی طرح 2 دن کے بعد ایک اور ہمارا ایگریمنٹ بھی ہو رہا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے اور بھی زیادہ آپ کو ملیں گے جو نتائج بہتر آئیں گے. اور پھر اسپیشلی جو ہم نے سیپرا کو اب ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب لاسٹ ہماری گورنمنٹ کے آخری ایام تھے اس میں کوئی جولائی میں ہم نے سیپرا کی اپروو کیا تھا 2023 میں. تو ظاہر ہے پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ٹائم آ گیا اور اس کو زیادہ فعال نہیں کر سکے. اب آ کے میں نے اس کے لیے میٹنگ کی ہیں، اور مصدق صاحب اور جو بھی ہمارے کنسرن لوگ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر کے الیکٹرک یا اسی طرح ہم بعد میں ہیسکو اور سیپکو بھی اس ہماری جو ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے ہم دیتے ہیں، تو ٹیرف کا بھی اختیار جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ سیپرا کے لحاظ سے، وہ جو نیپرا کی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، یا خاص طور پر ہمیں ونڈ پاور کوریڈور میں ان کا ٹیرف پراپر نہیں مل رہا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن آج میں بہت اپریشیٹ کروں گا گو والوں کو، اور پھر ظاہر ہے کہ الیکٹرک والوں کو بھی، جہاں کہ الیکٹرک کے لیے ہمیشہ ہم بہت ساری انبار بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس شکایات کے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی اچھی چیز میں انہوں نے ایل او آئی کیا ہوا ہے آلریڈی گو والوں کے ساتھ، تو یہ ایک اچھی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ نے یہاں پہ ویٹ کیا. میں کچھ لیٹ ہوا، وہ ہماری بجٹ کے لیے سی ایم صاحب کے پاس میٹنگز تھیں، کیونکہ کل بجٹ کو پیش کیا جا رہا ہے، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہو جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. جی بہت شکریہ آپ سب کا، اور میرے خیال ہے اب سیریمنی کی طرف. جی جیسے باقی صوبوں کے برعکس سندھ حکومت جو ہے نا انرجی کے حوالے سے اس کی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں. جی کول ہو، ونڈ ہو، اور ابھی جو ہے نا سولر انرجی، اور اس کے علاوہ گیس بھی، چونکہ سندھ حکومت 70% سندھ سے ہی پیدا ہوتا ہے. تو اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جو محروم ہے انرجی سے وہ سندھ کے شہری، کراچی یا سندھ جو بھی ایک ہی ہے، دارالخلافہ ہے، مطلب سندھ کے شہری ہی محروم ہیں. تو کیوں محروم ہیں جبکہ سندھ حکومت کی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کوششیں ہم کر رہے ہیں تو یہ محرومیاں انشاءاللہ ختم ہوں گی، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس اگر ایس ٹی ڈی سی کے ذریعے ہمیں لائسنس ہے، اور پھر ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح سلیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ لائن لاسز بھی اس میں کم ہیں، اور دیگر جو ان کی ہمیں وہ ٹارگٹس دیے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے میٹ اپ کر رہے ہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم یہاں پہ 2200 MMCF جو ہے وہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں، اور آئین کے آرٹیکل کے تحت
658 के तहत जहाँ से ये गैस या जो भी चीज़ हो उसका उसका हक है। और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो कि 1500 के करीब है, लेकिन हमें जो मिलता है वो 700 के लगभग है। तो ये हमने फेडरल गवर्नमेंट से इस बात को टेकअप किया है। लेकिन मेरी आज की गुजारिश होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको MOU है, तो इसको आज के उस पे ही रखा जाए ताकि सबको ये इल्म हो सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के काम कर रही है अपने सूबे की बेहतरी के लिए। तो अगर वो जो 18वीं तरमीम जिसका बहुत ज़्यादा कई लोग जिसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से अमल हो उस पर, तो हर सूबे में इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है लोगों को मिल सकती है। जी जी प्रोफेसर साहब आप कुछ साहब ये बता दीजिएगा कि इसकी लागत कितनी आएगी, टोटल फंडिंग किसकी होगी, जी प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग होगी या सिंध हुकूमत का भी कोई शेयर होगा, कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने जा रहे हैं। और आपने बात करते करते आप शायद आप बात मुकम्मल नहीं की, 18वीं तरमीम के बाद टैरिफ तय करना किसके इख्तियार है, सूबे जी बिल्कुल। देखें, उसमें एक तो जो प्रोजेक्ट है वो गो कंपनी, और एक अच्छी बात जो हुई है वो ये है कि इनके साथ अब कोलैबोरेशन में जो है सऊदी एक बहुत बड़ा ग्रुप है आरामको, उन्होंने इनके साथ इसमें आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी ख़बर भी है और एक अच्छी बात भी है। तो एक पूरा प्रोजेक्ट है। ज़ाहिर है हमारा काम, सिंध गवर्नमेंट का काम जो है वो STDC जो हमारा इदारा है उसका है कि वो सिर्फ़ इनको लाइन वहाँ से करके देगा। जिस तरह हम नूरियाबाद के जो पावर प्लांट हैं वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन दी हुई है के इलेक्ट्रिक को। तो ये पहला सूबा सिंधी है जिसने ये काम किया, और आज से कुछ साल पहले किया। अब मेरे ख़्याल में एक दो और सूबों ने भी ये लाइसेंस लिए हैं और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो टैरिफ की बात की आपने, जो टैरिफ की बात की, देखिए वैसे तो नेपरा सब चीज़ों का तयन करता है, टैरिफ का भी और दूसरी चीज़ों का। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद और ख़ास तौर पर जब हमने इसको टेकअप किया, जिसमें हमारी लीडरशिप ने भी बात की और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने इसको ज़्यादा फोकस किया, और इसी तरह जो हमारे मिनिस्टर एनर्जी रहे हैं इम्तियाज़ शेख साहब, तो सबकी कोशिशों से हमें वो सेपरा का जो कानून है या वो उसको हमने बनाया। असेंबली से भी पास हुआ, कैबिनेट से भी। लेकिन आप को मैंने डेट भी बताई कि जुलाई 2023 में उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, और फिर उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो अब उसका अभी हमने मीटिंग्स की हैं 2 उसके ऊपर, उसको एक्सपीडाइट किया है। उसका बोर्ड मुकम्मल करने के लिए जो मेरिट पे उसके लिए लोग भी लिए जा रहे हैं। फिर ये टैरिफ जो है, जो जिसकी मिसाल के तौर पर कोई सोलर के हम पार्क लगा रहे हैं, कोई विंड मिल से हम लोग जो सस्ती बिजली हासिल कर रहे हैं, या कोल के ज़रिए जो हम बिजली ले रहे हैं, और फिर उसकी ट्रांसमिशन अगर नेशनल ग्रिड के अलावा जो नेशनल ग्रिड में देंगे हम चीज़, उसका टैरिफ नेपरा तयन करेगा। जो हम खुद किसी यहाँ तो के इलेक्ट्रिक है जो हमारा बायर है जो हमसे ये चीज़ ले रहा है। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या जो इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं या कोई और जो भी इदारे इस तरह से हमसे लेंगे, वो वाला टैरिफ जो है वो सेपरा तयन करेगा उसका। तो ये है, नेशनल ग्रिड में जो चीज़ जाएगी उसका नेपरा करेगा। लेकिन जो हमारे पास सहूलियात हैं और हमने बड़ी कामयाबी से यहाँ पे उनको डिलीवर भी किया है और हमारे अच्छे सक्सेसफुल यहाँ पे एग्जाम्पल भी मौजूद है, उसके बाद सेपरा के ज़रिए हम वो जो कम कीमत पे, क्योंकि इस वक्त भी थर कोल के ज़रिए हम सस्ती तरीन जो यूनिट है वो दे रहे हैं, थर कोल का जो। जी हम अब देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से सिंध असेंबली में बड़ा गर्मा गर्म माहौल होता है कि इलेक्ट्रिक को आप खूब बुरा भला कहते हैं। लेकिन जब इसका लाइसेंस एक्सपेंड हो रहा था, आपकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन कोई एक बयान, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की कि इनका लाइसेंस जो है वो उसकी तजदीद ना की जाए। फिर अब आप सिंध असेंबली में बैठे, लेकिन उसका फायदा तो कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करने के अलावा। के इलेक्ट्रिक के साथ जो हमारी मोहब्बत है वो आप सबको पता है इस बात। जी बोलो। कल बजट पेश होने जा रहा है, जी तो एनर्जी की बात हो रही है, तो वो पीपल्स
पार्टी मंसूर में 300 यूनिट का भी वादा है आप लोगों का। जी जी बिल्कुल। तो सूबाई सतह पे कोई खुशखबरी सुनाएंगे एक दिन पहले बजट पेश होने से? जी बिल्कुल, देखें आप सबके इल्म में है कि इस दफ़ा जो हम बजट बना रहे हैं उसमें कोई नई स्कीम नहीं ली जा रही। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तसलसल है और यहाँ पे जो स्कीम्स इस वक्त ऑन गोइंग हैं वो भी सब हमारी ही जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं। तो इस हमने पूरी कोशिश की है कि उन स्कीम्स को कंप्लीट किया जाए और इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन जो है बजट की वो इस पे रखी गई है। लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का ये वादा था मंशूर में और उन्होंने जाके सबके पास इलेक्शंस के दिनों में बात की थी, तो दो सेक्टर को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, एक पानी और दूसरा ज़ाहिर है इस वक्त जो क्राइसिस थे एनर्जी के और टैरिफ की वजह से जो इतने महंगे बिल आते हैं, तो जो लोग हैं ख़ास तौर पर गरीब लोग या सफ़ेद पोश लोग वो इसमें बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। तो 300 यूनिट का वादा था, लेकिन ज़ाहिर है नेशनल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट हमारी बनती तो फिर तो हम उसको पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करते। फाइनेंशियल क्रंच भी हैं, लेकिन इस दफ़ा इस वजह से एक ब्लॉक एलोकेशन जो कल आप सुनेंगे चीफ मिनिस्टर साहब जब अपनी बजट स्पीच देंगे, तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा गया है। एक पानी और दूसरा एनर्जी का जो क्राइसिस है, फिर सोलराइजेशन हो, विंड पावर हो, या किस तरह हम अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। शाह साहब, जी एक सवाल ये है कि पूरे सूबे में जो यहाँ पर तो लोड शेडिंग हो ही रही है, लेकिन बाकी इलाकों में तकरीबन कोई 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सिंध हुकूमत का सब पहले ये भी प्लान था कि हेस्को और सेप्को भी अपने कंट्रोल में लिया जाएगा या वफाकी हुकूमत से बात की जाएगी, तो इस ज़मीन में कौन सा पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, देखें 12 घंटे को अगर आप इस तरह कर लें कि वहाँ पे 2-2 महीने की लोड शेडिंग कर लें या बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, बहुत सारे इलाके इस तरह के हैं, आपने उनको किया हुआ है, मीडिया पे पॉइंट आउट भी किया हुआ है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोग गए थे इस्लामाबाद और फेडरल मिनिस्टर साहब से वहाँ पे मीटिंग हुई, वो सिंध हाउस ही आए थे और सेक्रेटरी लंगड़ियाल साहब भी थे। तो इनसे ये सारी चीज़ें रखी गई और उस पर उन्होंने कहा है कि उसमें बेहतरी लाई जाएगी। जो हेस्को और सेप्को को आप जो हम चाह रहे थे कि वो सिंध गवर्नमेंट में है, तो उसका डेट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वो हैं, तो उस पर हमारी फेडरल गवर्नमेंट से है कि अगर आप बिल्कुल अभी से शुरू करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़रूर लेंगे जो भी है, और उस पर उनके साथ बात चल रही है और पुरुमीद हैं कि उस पर अच्छी कोई पेशरफ्त होगी। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के हवाले से बताइएगा कि उसके हवाले से क्या पेशरफ्त है, और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है उसको काउंटर करने के लिए सिंध हुकूमत की क्या इक़दामात है? कोई नया अपना पावर प्लांट लगाते हैं और फिर उसका कुछ करते हैं, लेकिन उसके लिए देखें कि इलेक्ट्रिक को जब हम वो अब सेपरा के टैरिफ के ज़रिए जब हम देंगे कोई भी चीज़, तो उनको फिर हम कोई पाबंद कर सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, जो अभी हमारे मोहतरम भाई ने जो बात की सुमरो साहब ने, कि जो लोगों को फ्री करने की बात थी, तो हमारा प्लान यही है कि हम अपने सोलर पार्क्स बनाएंगे और फिर वहाँ से एसटीडीसी की इसी लाइन के ज़रिए अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं कि इलेक्ट्रिक को, या फिर जिस तरह आगे हमारा दीगर डिस्कोस के साथ है, अगर वो हेस्को सेप्को उनको लें, तो फिर वो टैरिफ उस पर फिर लागू किया जाएगा। और फिर हम तो सीधा सीधा एक सिंपल मैथमेटिक्स थी कि जितने यूनिट हम के इलेक्ट्रिक को दें, फिर हम उनसे ये बात करें कि जी इतने यूनिट हम आपको दे रहे हैं और इसके अंदर जो यूनिट आ रहे हैं, मिसाल 0 to 100, 0 to 200 या 0 to 75 जो भी यूनिट कंज्यूम करते हैं, उनको फ्री कर दिया जाए और उनका हो जाए कि ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनके बिल जो हैं वो हमने पे किए हैं। तो ये सोलर पार्क बना के जब हम अपने एसटीडी से देंगे तब इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वही प्राइस जो है वो हमें अफोर्डेबल होगी। अदरवाइज़ जो नेपरा के टैरिफ है उसमें तो फिर इसमें बड़ा वो सिलसिला आता है। तो हम लोग अभी सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो इस वक्त पूरे सिंध में कोई 2.6 के करीब हाउस होल्ड ऐसे हैं जो ऑफ ग्रिड हैं, जिनके पास बिजली नहीं है। तो
फर्स्ट फेज़ में हम 5 लाख घरों को अभी कैटर करेंगे तो जिनको सोलर पैनल और दीगर चीज़ें दी जा सकें। बहुत शुक्रिया जी। और मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो आज का ये इवेंट है इसको ही फोकस किया जाए, ताकि इस तरह जैसे आज गो के साथ अरामको बहुत बड़ी एक कंपनी है सऊदी की, तो इसी तरह और इन्वेस्टर भी यहाँ पे आएँ और हम उनके लिए उनको सपोर्ट करें ताकि हमारे लोगों को फैसिलिटी हम मुहैया कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।